Hello and Assalamu alaikum. This is psychologist Abdul Qadir and I welcome you all on behalf of C3A to our awareness raising series Aao Baat Kare. Today's topic is about how we navigate and adjust to university setting, and बेशक आप first semester से हैं या फिर already here, this video might be useful for you and this episode has got you covered. So you've packed your bags and said your goodbyes and now you're finally at university. Congratulations. This might be a bit overwhelming for you to be in university in the starting, लेकिन with time चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है. आज की इस वीडियो में we'll be discussing the tips and techniques जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे जाकर इस चीज़ को sort out करने में. Imagine this, you're on a roller coaster of emotions. One minute you're feeling super excited for the freedom you have gained by joining university, and the next you're feeling super homesick. So this is a classic case of being caught between two worlds. एक जगह पे आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा, काफ़ी पॉइंट्स पे you'll be feeling super low. तो इस चीज़ के अंदर we'll be helping you out. You can always seek support from C3A, and in this video we'll be giving you better techniques to help you out. So here's an interesting concept, the W curve. ये एक ऐसा मॉडल है जो illustrate करता है different stages of adjustment. जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको different kind of stages से आप गुजरते हैं. तो पहला स्टेज मोस्टली टॉक्स अबाउट द हनीमून फेज, जहाँ पे यू फील सुपर थ्रिल्ड एंड सुपर एक्साइटेड, यू गॉट एंजॉय दिस फेज. उसके बाद हमारे पास आता है द कल्चरल शॉक, जिसके अंदर आपको वो थ्रिल फेड होता नज़र आएगा एंड यू विल बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि किस तरह का माहौल है, या देयर वुड बी डाइवर्सिटी, देयर वुड बी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है. देन we get into the initial adjustment phase, जहाँ पे you will feel adjusted, you will be able to find your own rhythm, and then you will be better. But with time again, you might feel the fourth stage, which is mental isolation, जिसके अंदर you will feel is isolated और आपको लगेगा कि शायद ये bit too much हो रहा है, थोड़ा overwhelming हो रहा है. तो उसके बाद वो चीज़ भी with time settle in हो जाती है. So now let's talk about homesickness for a bit. ये एक ऐसी चीज़ है ये students not really fully anticipate. जब आप यहाँ पे आते हो you might think I got this और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन few weeks set in उसके बाद you'll feel like कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा. It's very natural. Starting में इस तरह का feel होना बहुत ही natural सी बात है. With time it gets better. As a pro tip, you could join clubs and societies, और आप library में जाके visit कर सकते हो. वहाँ पे there is a lot of good books जो कि you can consult for your well-being, and you can always come to us as well for counseling or if you need any career advisory services. As you start your university life, it's all about finding your own groove. जैसे कि स्टार्टिंग में you might feel overwhelmed, तो उसके लिए you might be starting to focus on finding friends, या फिर आपका mostly focus होगा socialization के ऊपर, या फिर आपका ज़्यादा focus आ जाएगा पढ़ाई के ऊपर. लेकिन it's all about balancing. अगर आप किसी भी एक चीज़ की तरफ जाओगे तो you might be isolating yourself from the other thing. So it's really important कि आप हर चीज़ बैलेंस में करो, लेकिन also try not to lose yourself in this process. आपको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए. You need to know who you are in order to succeed. Now let's have a brief look at common stressors and how to tackle them. जैसे कि हमने बात की about homesickness, तो let's talk about it again for a bit. जैसे कि homesickness स्टार्ट में सबको फील होती है and it's quite normal to feel that way. लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम कॉल्स पे स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, तो फिर वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हम एडजस्ट हो सकें अभी यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ठीक है घर को भी टाइम दें, कॉल्स पे बात करें, उनसे मिलने भी जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि यहाँ के माहौल में भी एडजस्ट होने का आपको टाइम मिले, ताकि न्यू फ्रेंड्स बनाना है, क्लासमेट्स के साथ नो हाउ करनी है, प्रोफेसर से बात करनी है. दिस विल हेल्प यू टू एडजस्ट है, ताकि आपको यहाँ के माहौल की भी आदत बने. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ा मसला होता है स्टार्टिंग के अंदर. टाइम मैनेजमेंट के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपने साथ जो भी हमारे टास्क्स हैं, बेशक वो एकेडमिक हों, पर्सनल हों, या फिर हमारे अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ हमारे टास्क्स हैं, बेड बनाना है, काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, तो इन सब को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है. इसके अंदर यू कैन यूज़ ओल्ड फैशन्ड कैलेंडर्स, जिसके अंदर हम अपने टास्क लिख सकते हैं, कोई रिमाइंडर्स डाल सकते हैं कि अच्छा अगर ये चीज़ हमने इस टाइम पे करनी है, और फिर उनको प्रायोरिटाइज़ करना. That can also help us out in this process. उसके बाद we have academic pressure, जो कि कॉमन सी चीज़ है. हो सकता है स्टार्टिंग में उतना फील ना भी हो, लेकिन अगर कुछ कोर्सेज में वो फील हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू टॉक विद द ट्यूटर्स, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हो काउंसलिंग के लिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ
that's the option available for you as well. Then we have classmate conflicts, जो कि बहुत ही कॉमनली हमें नज़र आएंगे, बेशक वो क्लासमेट्स के साथ हो या फिर रूममेट्स के साथ हो. It's very important कि हम उनके बारे में स्टार्टिंग में ही बात करें, so that we can avoid even bigger conflicts later on. Then we have body image concerns और self image concerns, जो कि बहुत कॉमनली हमें फील होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, जबकि हम एक आइडियलाइज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को अगर देखते हैं तो वो बड़ी ही एक कंसर्निंग चीज़ हो जाती है. हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट हो सकती है, हमारी स्लीप भी इम्पेक्ट हो सकती है और हमारी ओवरऑल वेलबींग भी इम्पेक्ट हो सकती है. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें और अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि हम खुद को कंपेयर करें बाकी लोगों के साथ. वी नीड टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद आवर ओन सेल्व्स फर्स्ट, हमारी पास्ट सेल्फ के साथ जिसके हम पहले थे. इफ़ वी आर डूइंग बेटर देन बिफोर, then we are doing great. Now let's get into some actionable tips which can help us succeed in our first semester. सबसे पहले we'll be talking about knowing ourselves and being confident. Knowing ourselves is very important. अपने patterns को समझना, अपने habits को समझना, अपने emotions के बारे में understand करना, ये सारी चीज़ें insight building में आती हैं, जो कि आप अपने आप खुद भी insight build कर सकते हो. You can also seek professional help. Therapy के अंदर भी psychologists usually help you out with insight building. अगर आपको अपने concerns के बारे में आइडिया नहीं है या फिर अपने patterns नहीं पता, उनको आइडेंटिफाई करना है, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको to live a better and healthier life. तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके बाद let's talk about mastering communication. Communication बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी उस चीज़ के अंदर आना. अगर आपके कोई रूममेट कॉन्फ्लिक्ट्स है, यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. सर्टेन नॉइज़ लेवल्स रखने हैं या फिर लाइट किस टाइम बंद करनी है या फिर विजिटर्स अलाउड हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अपने रूममेट के साथ पहले ही तय करनी होगी ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. Then we have handling your finances. University might probably be your first taste of financial independence. इसके लिए अंदर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि किस तरह से हम फाइनेंशियली खुद को लेके चल रहे हैं. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपने फाइनेंसेस को पोर्शंस में डिवाइड करें ताकि हमारी जो है सारी फाइनेंसेस शुरू में ही ना ख़त्म हो जाए, बाद में इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज. Then we have being patient with the process. Obviously it will take time. Starting में overwhelming हो सकता है ये process. हमने जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में mindful रहना है कि with time ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये process जो है हर किसी के लिए उतना ही overwhelming होता है जितना कि आपके लिए है. तो काफ़ी important है कि हम help सीख करें जहाँ से भी हमें मिल सके, बेशक वो friends हों, professional help हो या tutors हों या फिर roommates. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को साथ लेकर चल सकें. Then we have to connect with others. Connecting with others is really important. हम अपने connections बनाएं, बेशक वो clubs and societies के through हों, classmates हों, roommates हों या फिर हमारे friends जो कि outside या फिर external hostels में भी रह रहे होते हैं. तो हमारे लिए बहुत important है कि हम connections को साथ लेकर चलें और अगर कहीं पे कोई issue हो तो उसके बारे में communicate करें. Then we have utilizing campus resources. जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि C3 is available for counseling and career advisory. आपको कभी ज़रूरत हो तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो. इसके अलावा there are clubs and societies, there is gym, there is swimming pool, there are other recreational activities जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो एक बेहतर तरीके से इन चीज़ों के अंदर एडजस्ट होने के अंदर. Then we have staying organized. हो सकता है कि काफ़ी मुश्किल हो स्टार्ट के अंदर, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, फिर फ्रेंडशिप्स भी फोकस करना होता है, सोशलाइज करना होता है. तो यू नीड टू मेक ए कैलेंडर जहाँ पे आप अपने रिमाइंडर सेट करो, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ जहाँ पे इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू प्रायोरिटाइज योर टास्क्स. देन वी हैव प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर. जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हमारी स्लीप हाइजीन. हमारा स्लीप जो है वो 6 to 8 आवर्स मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा हमारी डाइट बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना. उसके बाद वही है फिज़िकल एक्टिविटी जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. देन वही है सोशलाइजेशन जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है. तो ये 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ केयर जो कि हमें साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है. Navigating university life is filled with highs and lows. काफ़ी जगहों पे हमें overwhelming भी फील हो सकता है लेकिन काफ़ी जगहों पे it would be fun for you as well.
इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और अगर जहाँ पे भी हमें हेल्प की ज़रूरत हो हम ज़रूर उसको सीख करें। C3 इज़ अवेलेबल फॉर यू। बेशक आपको काउंसलिंग चाहिए हो या करियर एडवाइस चाहिए हो, आप किसी भी हेल्प के लिए हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो विजिट अस, वी आर अवेलेबल एट साडा के ग्राउंड फ्लोर पे। उसके अलावा कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हैविंग फन एंड रिमेंबर एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो।